Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 3 Semester 4 and we have started now the first unit, that is method of separation. So friends, in our last lecture we have discussed about the method of electrophoresis, where we have seen that the separation method is based on the electrical effect. So when your component of the mixture contain charge, okay, they are charged molecules, then their separation is possible with the help of electrophoresis. So in that case you have to apply electrical direct DC current to the sample, and when the molecules get electrical field, then obviously the positive molecules will travel towards negative electrode and the negative molecules will travel, or we can say ion will travels toward the positive electrode, and this way there is separation of them. Okay, so now today we will discuss about the next method, that is separation method based on capacity to exchange with a resin. Okay, so yesterday I have given some idea about that ion exchange technique or ion exchange resins are insoluble granular substances which have in their molecular structure acidic or basic radical, okay, and that can be exchanged. So this way what you have to do, you have to take a column or we can say a burette, and in that burette you have to fill beads of glass. Okay, that beads of glass are called as resins, and on the surface of that resin they have positive or negatively charged radicals or ions. Okay, so this type of beads are used to exchange their ions with your sample or sample solution. So in this case what you have to do, these resins are either positively or negatively charged ions, or they can also be acidic or basic radicals. Okay, so the positive or negative ions fixed on these radicals are replaced by the ions of the same sign or size in solution in the liquid in contact with them. तो आपको जिस भी कंपाउंड को सेपरेट करना है या फिर प्यूरिफाई करना है, दैट सैम्पल यू हैव टू पोर इन दिस टाइप ऑफ रेजिन कंटेनिंग कॉलम्स. तो आप ये डायग्राम देखो, हियर यू कैन हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस, that in left hand side diagram there is a burette type structure which is called as column, और उस column के अंदर बहुत सारे molecules भरे हुए हैं, है ना, beads भरे हुए, and these beads contain acidic or basic structure or they are positively or negatively charged ions. तो जब आप उसके ऊपर आपका sample solution डालते हो, then what will happen, the ions inside that sample will get attached and they will get exchanged with the ions on the beads in the column. Okay, so this way you can purify the water. तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, we want H and OH, H plus and OH minus ions, that is H2O molecule. तो जो इम्प्योरिटी है उसके आयंस हम लोग रेजिन पे एक्सचेंज कर देते. मान लो जैसे उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो वो इस पर्टिकुलर बीड्स के ऊपर एक्सचेंज हो जाती है और फाइनली you get pure and we can say soft water. So this technique is used for purification of water. Okay, तो ये जो कॉलम होता है या फिर पर्टिकुलर रेजिन होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज़ शोन इन राइट हैंड साइड डायग्राम. तो राइट हैंड साइड में हम लोग देख सकते हैं दैट कॉलम इज़ शोन इन बिग मैनर और जूम मैनर. तो उसमें हम लोग देखेंगे कि देर आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड्स टू निगेटिवली चार्ज बीड्स. मतलब अगर अंदर पॉजिटिवली चार्ज बीड्स प्रेजेंट है तो आपके सैंपल में से जो निगेटिवली चार्ज आयंस होंगे या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके ऊपर जाके अटैच करेंगे. सो देर आर ब्लू यू कैन से स्मॉल बॉल्स, उसके साथ ग्रे कलर के निगेटिवली चार्ज बॉल्स अटैच हो चुके हैं. सो दिस वे
negatively charged particle will attract positively charged particle. Similarly उसके नीचे देखो रेड कलर या पिंक कलर में निगेटिवली चार्ज आयन्स है, तो वो आपके जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उनको कलेक्ट करेंगे. सो दिस वे देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन विल टेक प्लेस. So natural ion exchangers are also existing, and they are kind of clay or zeolite material, and they are used from long time, but nowadays synthetic ion exchange resins are used. Okay, so ये टेक्निक बहुत सेफ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ जो है वो केमिकल तरीके से सेपरेट नहीं होती. देयर इज़ what we can say, you don't have to add any harsh chemical or harmful chemical for purification of water or purification of your substance. Only you have to exchange the ions of impurity with this particular type of resin. Okay, तो ये बहुत ही अच्छी safe method है, and that's why these type of methods are used for water softening as well as water deionization and for solution purification. Okay, so in case of water purification, cation exchange resin exchanging their H plus ions with the cation of aqueous solution, and anion exchange resin exchanging their OH minus ions with the anion in aqueous solution are used. मतलब पहले आपको पॉजिटिवली चार्ज मतलब कटायन एक्सचेंज जो रेजिन है उसमें से उस वाटर को पास करना पड़ेगा, और फिर दूसरी बार आपको वही सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज आयन जिसके पास OH माइनस आयन एक्सचेंज रेजिन है उसमें से पास करना पड़ेगा. बिकॉज जनरली वन कॉलम इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आयन्स. तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज आयन से बना हुआ रेजिन ले रहे हो, दैट इज कटायन एक्सचेंज रेजिन, राइट. पॉजिटिवली चार्ज मतलब कटायंस. तो ये कटायन एक्सचेंज क्या करेंगे, दे विल ओनली एक्सचेंज H प्लस आयन्स विद द वाटर सैंपल. फिर दूसरे बार आपको वही पानी वही वाटर निगेटिवली चार्ज आयन दैट इज अनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ फिर इंटरैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू विल हैव नाउ OH minus ion exchange resin. So this way, using ion exchange technique, you can separate the impurity from the water or any type of solution, and finally you get very purified type of product. Okay, so this way this is very effective and very important type of separation method. Okay, so next separation technique we will see, and that is very very important, that is called as chromatography. Okay, तो ये जो chromatographic technique है किसके ऊपर डिपेंड करती है, दिस इज द सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ अ स्टेशनरी फेज. तो ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल एक्सप्लेन यू वेरी इजीली कि हर एक चीज़ का क्या होता है, देयर इज इट हैज़ सम कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट और वी कैन से एक्सचेंज or differentiate the component in its stationary phase and the mobile phase. तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर, जैसे आप मान लो कोई पेपर है, तो पेपर क्या है, पेपर के जो रेशे है जो धागे है उसके अंदर जो वाटर है दैट विल एक्ट एज स्टेशनरी फेज, और उस पेपर को अगर आप किसी पानी में या सॉल्वेंट में डाल देते हो देन दैट सॉल्वेंट विल एक्ट एज मोबाइल फेज. तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो उसके ऊपर अगर आप कोई सॉल्यूट डाल दो या कोई कंपोनेंट डाल दो तो उसको वो दो चीज़ों में सेपरेट या डिफरेंशिएट करेगा. एक तो उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है उसके अंदर, और जो मोबाइल फेज मूव हो रही है उसके अंदर. सो दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टेशनरी फेज. तो इस टेक्निक के ऊपर जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी. So first of all we will see the definition of chromatography, that is it is based on the principle where molecules or components in the mixture applied onto the surface or into the solid and fluid, the stationary phase is also known as stable phase, is separating from each other while moving with the aid of mobile phase. तो मोबाइल फेज को भी हम लोग क्या कहते हैं, मूविंग फेज, है ना. मतलब किसी पेपर के ऊपर अगर आप किसी मिक्सचर का डॉट डाल देते हो, यू हैव क्रोमेटोग्राफिक पेपर, वी विल कंसीडर एग्जांपल ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर.
उस पेपर के अंदर, पेपर के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, किसी भी सैंपल के मिक्सचर का एक स्पॉट डाल रहे हो। ओके, अभी पहले क्या होगा, दैट स्पॉट विल बी गेट एब्जॉर्ब बाय दैट पेपर, है ना। पेपर के ऊपर डालते हो तो ऑब्वियसली पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे अगर उस पेपर को आपने किसी सॉल्वेंट में रख दिया, सिंपली वाटर में भी रख दिया, तो क्या होगा, वो डॉट फैलना शुरू होगा, है ना। उसी जगह पे नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट सॉल्वेंट दैट स्पॉट विल गेट सेपरेटेड, वो फैलना शुरू हो जाएगा एंड स्लोली द कंपोनेंट ऑफ इट्स मिक्सचर विल गेट सेपरेटेड। क्योंकि हर एक कंपोनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी है उस पेपर के ऊपर चिपके रहने की, है ना। द पेपर हैज कैपेसिटी टू होल्ड दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो वो क्या करेगा, किसी कंपोनेंट को ज़्यादा होल्ड करेगा, किसी कंपोनेंट को कम होल्ड करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट होल्डिंग कैपेसिटी द कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर विल गेट सेपरेटेड। इसका सिंपल ये है कि अगर उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो वो एक ही जगह पे या एक ही लाइन पे फैलेगा, लेकिन उस मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है तो वो अलग अलग रेट से सेपरेट होने लगेंगे। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो करते क्या है कि यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर वी कैन से एड विच इज़ अ स्टेशनरी फेज, जिसके ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसे हम लोग कहेंगे स्टेशनरी फेज, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और जो सॉल्वेंट हम लोग रन करेंगे उसे हम लोग कहेंगे मोबाइल फेज। ओके, सो दिस वे इट इज एक्चुअल called as differential distribution of a mixture between two phases। मतलब एक आपकी स्टेशनरी फेज है और दूसरी आपकी मोबाइल फेज है। तो व्हाट इज एक्चुअली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, इट इज द सेपरेशन प्रोसेस बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मिक्सचर between two phases, one of the which called as stationary phase, और जो मूव करती है उसे हम लोग कहते हैं मोबाइल फेज। सो इफ द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, द प्रोसेस इज टर्म एज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, है ना। आपकी जो स्टेशनरी फेज है जिसके ऊपर आप अपना मिक्सचर डाल रहे हो वो अगर सॉलिड है ना, स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकती है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। And if the stationary phase is liquid, sometimes it can be liquid also, then the process is termed as partition chromatography. So depending upon the stationary phase, two types of chromatographic processes are there. One is adsorption and one is partition type of chromatography. So the difference between these two lies in the nature of the forces that determine the distribution of the solute between two different phases। तो ये जो स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसकी सम अमाउंट स्टेशनरी फेज में रह जाती है और कुछ अमाउंट मोबाइल फेज के साथ निकलने लगती है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट और कंपोनेंट in two different phases, right? So in case of adsorption chromatography, the rate at which the solute move or separate depends upon various degrees of affinity that the solute is having for stationary phase। जैसे मान लो कि आप किसी घर में बैठे हो और वहाँ पे बहुत बड़ा पानी का फ्लो आ रहा है बाहर से, तो क्या करेगा, यू वांट टू बी देयर इन योर हाउस, है ना। तो आपका हाउस हो गया स्टेशनरी फेज, और जो बाहर से फ्लड आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल फेज। वो आपको आपके घर से बाहर ले जाना चाहता है। तो आप कितने अच्छे से अपने आप को होल्ड कर पा रहे हो इन योर हाउस, that is called as affinity of yourself or affinity of the solute toward stationary phase। लेकिन आप कितना भी वहाँ रहना चाहो, फ्लड अगर बहुत ज़्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दैट विल टेक यू आउट विथ इटसेल्फ, तो आप वहाँ नहीं रह पाओगे। दैट मीन्स द मोबाइल फेज विल कैरी यू आउटसाइड और मोबाइल फेज विल कैरी द सॉल्यूट विथ इट। So that is called as differential distribution of the solute in two different phases. In case of partition chromatography,
it depends upon the relative solubility of the compound in two different liquid phases. तो यहाँ पे पार्टीशन के केस में क्या होगा, आपकी स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और आपकी मोबाइल फेज भी लिक्विड है. तो देर आर टू लिक्विड्स एंड देयरफॉर सॉल्यूट डिपेंड करता है दोनों लिक्विड में कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके ऊपर आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है. ओके, सो दिस वे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज नथिंग बट द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन टू डिफरेंट फेजेस. ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, है ना. तो क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है. सबसे पहले इट बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन. कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर या कौन से टेक्निक के ऊपर या कौन से मैकेनिज्म के ऊपर वो बेस्ड है. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. तो ये तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि अगर आपकी स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड अगर आपकी स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है तो उसे हम कहेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इन दिस बोथ केसेस द मोबाइल फेज विल बी लिक्विड ओनली, है ना. मोबाइल फेज तो लिक्विड ही रहेगी क्योंकि वो मोबाइल है. तो सॉलिड कैन नॉट बी अ मोबाइल फेज बट सॉलिड कैन बी अ स्टेशनरी फेज, एक ही जगह पे रहने वाला है. सो this type of separation or two type of chromatographic techniques are there. Then second one is based upon the phases, है ना. तो फेज मतलब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज हम लोग कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो वेरी फर्स्ट इज सॉलिड फेज क्रोमेटोग्राफी. तो सॉलिड फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगी और मोबाइल फेज कैन बी लिक्विड. तो उसकी फर्स्ट टाइप हो गई सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. और इन दिस केस स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगी लेकिन जो मोबाइल फेज है इट कैन बी अ गैस ऑल्सो. गैस तो इजीली यहाँ से वहाँ मूव हो सकता है, तो मोबाइल फेज गैस भी हो सकती है. सो द सेकंड टाइप इज सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी. देन इन दिस द सेकंड टाइप इज लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी. तो इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड और मोबाइल फेज भी लिक्विड हो सकती है, या फिर उसके अंदर का सेकंड टाइप दैट इज लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी. तो फिर से स्टेशनरी फेज लिक्विड है लेकिन मोबाइल फेज गैस हो सकती है. सो बेसिकली सिंपल सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस, ये है बेस्ड अपॉन फेजेस. फिर आप थर्ड टाइप देखो, इट कैन बी बेस्ड अपॉन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड. तो ये क्रोमेटोग्राफिक बेड क्या है, इट इज़ द यूज ऑफ पेपर और क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, राइट. तो सबसे पहला टाइप है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, है ना. प्लेनर मतलब अगर आपका सरफेस जिसके ऊपर आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो वो अगर प्लेन है तो उसे कहेंगे प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. हियर first type is paper chromatography. So using a paper you can carry out your chromatographic technique, or you can also use second type that is thin layer chromatography. So in case of thin layer chromatography you have to take a glass plate, or it can be sometime also a plastic plate on which there is a particular layer of carrying material is given, and this thin plate is used as क्रोमेटोग्राफिक बेड. ओके, तो ये डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे व्हाट इज़ थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी. लेकिन एक में हम लोग पेपर यूज़ करते हैं, डायरेक्टली उस पेपर के ऊपर क्रोमेटोग्राम या जो भी सेपरेशन है वो आ जाता है, या फिर यू कैन यूज़ अ ग्लास प्लेट जैसे आपकी स्लाइड होती है जिसके ऊपर हम लोग सेल देखते हैं, उसके ऊपर आपको एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल का लेयर लगा देना है जैसे कि सिलिका जेल, एंड दैट विल एक्ट एज प्लेट फॉर क्रोमेटोग्राफी. तो ये हो गई थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी. या फिर सी द बी और सेकंड वन दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी. तो अगर आप पेपर या प्लेट यूज नहीं करना चाहते हो तो इन दैट केस यू कैन टेक अ ब्यूरेट inside which you have to pack some material, and then that is called as column chromatography. So in this case the first type is called as packed column chromatography, और second one is called as open tubular column chromatography. तो मतलब क्या हो गया कि using this type of different
technique, you can use the chromatographic method for separation of component of the mixture. Okay, तो इस सारे चीज़ में बहुत अलग अलग वैरायटी है और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे कि पेपर कौन सा लेना है, सॉल्वेंट कैसे सिलेक्ट करना है, और फिर एक्चुअली ये मेथड कैसे करते हैं, हाउ द सेपरेशन इज डन. So all these things we will discuss in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.